360 टीवी में मैं हूं आपके साथ अनन्या ठाकुर। चलिए शुरुआत करते हैं आज की अहम खबर से। देश की उच्च शिक्षा व्यवस्था से जुड़े एक बेहद अहम और संवेदनशील मुद्दे पर इस वक्त देश भर में बहस तेज है। यूजीसी एक्ट 2026 सरकार द्वारा प्रस्तावित यह नया कानून क्या शिक्षा सुधार की दिशा में बड़ा कदम है या फिर यह विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता, शिक्षकों के अधिकार और छात्रों के भविष्य पर एक गंभीर संकट। इन्हीं सवालों के बीच आज हमारे संवाददाता दर्श सिंह पहुंच चुके हैं भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। यूजीसी एक्ट 2026 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अदालत में सुनवाई हो चुकी है और अब इस मामले में अगली तारीख तय कर दी गई है। लेकिन बड़ा सवाल यह है, अदालत में अब तक क्या हुआ? याचिकाकर्ताओं की सबसे मजबूत दलील क्या है और आखिर क्यों कहा जा रहा है कि इस एक्ट पर तुरंत रोक लगनी चाहिए? इस पूरे मामले में सबसे पहले याचिका दाखिल करने वाले एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड मिस्टर सत्यम पांडे और उनकी कानूनी टीम से आज हम सीधे जानेंगे कि यूजीसी एक्ट 2026 में वो कौन से प्रावधान हैं जो संविधान की भावना के खिलाफ बताए जा रहे हैं। हम आ चुके हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, जहां पे हम बात करने वाले हैं यूजीसी कंट्रोवर्शियल 2026 कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर। यहाँ पे 19 मार्च को अब अगली हियरिंग है। देखते हैं एडवोकेट्स की क्या राय है इस पे। वी आर हियर विद एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सत्यम पांडे's टीम एंड वी आर गोइंग टू आस्क देम अ फ्यू क्वेश्चंस अबाउट दिस केस। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, गाइस, with the next hearing on 19 March, what are the likely outcomes? Full quashing revision or upholding after UGC's responses? Anyone you can answer? See, we are going for the full abolition of this provision, especially section 3C, because there is a overlapping provision between section 3C and 3E. The impugned regulation already contains a definition of discrimination, and when you have a definition of discrimination which includes everything, then why we have a provision like section 3C of the impugned regulation? It is totally violative of Article 14 and 15 and 21 of the Constitution of India. So my next question is, the bench flagged misuse potential of personal vendettas on campuses. What safeguards could prevent this without diluting protections for marginalized groups? Yes. Actually, the law is already prevailing in India as per Constitution of India. As and when there is a requirement of any developments due to change of scenario, or if there is any threat to any society or any type of individuals, especially I am saying, not quoting any big words, caste or group or team or whatever is there, if any individual is being harassed, he has his rights as well as liabilities towards other citizen as well as government of India in a common society. Since beginning till today, we are in a developing stage. And throughout life, when we are establishing, till date we are existing, we are in developing stage. So need of change of law is each and every time is required. But now what the government is doing by way of this resolution is very important. The first of thing is that applicability of this new regulation in UGC will create a distinction between the students of whatever they are of sect. By way of these regulations, when you enter into the campus, you will have to decide in which category, on which caste, on which team you are there. Actually, in a normal way, the litigation is not litigation. The fights between the students in a way of the overruling is prevailing in the society is very normal. There is no difference in that. But the thing is that when there is a discrimination on the basis of these points, that is totally illegal and contrary to the settled provisions of Constitution. Not I am saying to the law. Article 14, 15, 16 is there in Constitution of India. What we are actually having in the Constitution of India in our hands. As per that Constitution of India, if you are doing something illegal, that is totally likely to be neglected and quashed. Okay, thank you, sir. How does Regulation 3C's narrow definition of caste-based discrimination limited to SC, ST, OBC violate Article 14's equality guarantee by excluding general categories? See, the Constitution of Article 14 of the Constitution ensures equality before all the citizens of the country. It permits
class reasonable classification but prohibits class legislation. Here what the UGC has done, UGC has framed a special law and class legislation which is violative of Article 14. Here UGC has treated SC, ST and OBC candidates as one class and excluding the general category as a different class. So on the basis of such provisions like section 3C, it violates Article 14. It is a clear-cut violation of Article 14 of the Constitution of India, and hence it's liable to be completely taken off, struck down by the Constitution courts. तो मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा, जैसा कि मैंने बताया था 19 मार्च को इसकी अगली हियरिंग है, आपको क्या लगता है इसका फाइनल आउटकम क्या होने वाला है? फाइनल आउटकम यही है कि कोर्ट ने जो डिसीजन देना है और जो हमने पिटीशन डाली है उसके हिसाब से सबके हित के लिए, देश के लिए और स्टूडेंट के लिए, जिसके लिए हमने यूजीसी का डाला है, सबके लिए अच्छा ही रहेगा। और इस पे विचार सरकार भी कर रही है, कोर्ट ने डिसीजन दिया ही है। अब 19 तारीख का वेट करते हैं, हमें कुछ और भी तैयारी करनी होगी उसके लिए, तो हम तैयारी कर रहे हैं। 19 तारीख का वेट करेंगे, 19 को जो भी डिसीजन होगा उसका वेट किया जाएगा। सो एनीथिंग यू हैव टू से? सबसे बड़ी चीज़ जैसे आपका है सच का सफ़र हर दिल तक, जो आपका चैनल का वो है। आप ये सोचिए कि मान लीजिए आपकी कोई बच्ची ग्रेजुएशन में जाती है और कोई भी आदमी एक फप्ती कसता है तो उसका रिएक्शन क्या होगा? वो उसे इग्नोर करेगी या उसे डांटेगी। आपने एक सिंपल सी ईमेल भेजी या कोई भी आपने शिकायत कर दी, उसका कैरियर जो है उस पर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो जिस तरह से हमारे सत्यम जी ने इसको तैयार किया, बेस पिलर अगर आप देखिए जितना ये पूरे पिटीशन का था, इन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया इस पर। अभी तो इनके आर्गूमेंट पूरे आए ही नहीं हैं, तो जो मार्च में आप कह रहे हैं वो पूरी सारी बातें आएंगी। और ये एक देश का ज्वलंत मुद्दा है। आप ये देखो कि साउथ से लेके नॉर्थ तक, ईस्ट से लेके वेस्ट तक, हर जगह इसके लिए प्रोटेस्ट हुआ है। जो सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया वो एक बड़ी चीज़ है, लेकिन ये चीज़ हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं और जो ये चीज़ें बना रहे हैं, ये डिवीज़न करना चाह रहे हैं, ये सबसे खतरनाक पहलू है। तो इस पर हमको ज़रूर एकजुट होना चाहिए और सरकार को भी इस पर संज्ञान लेके एक फिर से अमेंडमेंट लाना चाहिए। सत्यम जी, इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? क्या 19 मार्च को हमें कुछ नया देखने को मिलने आ रहा है या कुछ अब झलक देना चाहेंगे हम उस दिन की? देखिए, ऐसा है जैसे अभी कल हियरिंग हुई और मेरे कलीग मकरध्वज यादव, इनका सहयोग मिला, और नीरज सिंह जिन्होंने आपके सवालों के जवाब दिए, बहुत मेहनती हमारे जूनियर हैं, और अवधेश जी, ये हमारी पूरी टीम, इनकी मदद से हमने पिटीशन तैयार की। इन लोगों ने काफ़ी मेहनत की, काफ़ी रिसर्च किया। मैं इन लोगों से फिर रिक्वेस्ट करूंगा 19 मार्च के लिए आप लोग और मेहनत करिए ताकि हम कोर्ट में कुछ कह पाएँ। थैंक यू। तो ये थे हमारे सवाल और जवाब। आगे के लिए जुड़े रहिएगा भारत न्यूज़ 360 टीवी से। मेरा नाम है दर्श विक्रम सिंह विद कैमरामैन सोलंकी। तो आपने सुना, कानूनी विशेषज्ञों और याचिकाकर्ताओं का साफ कहना है कि अगर यूजीसी एक्ट 2026 को मौजूदा स्वरूप में लागू किया गया तो इसका असर केवल किसी एक वर्ग या संस्थान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह प्रभाव हमारे सभ्य समाज, हमारी शैक्षिक परंपराओं और सबसे अहम देश के युवा वर्ग के भविष्य पर सीधा पड़ेगा। आरोप यह है कि यह कानून उच्च शिक्षा को संवाद और सहमति से दूर ले जाकर एक तरफा नियंत्रण की ओर धकेल सकता है। जहां विश्वविद्यालयों की स्वतंत्र सोच कमजोर होगी, शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान से ज्यादा आदेश बन जाएगा और युवा पीढ़ी के सामने सवाल कम, अनिश्चितता ज्यादा रह जाएंगी। आज चिंता किसी एक समुदाय की नहीं बल्कि उस पीढ़ी की है जो कल देश की बागडोर संभालेगी। अगर शिक्षा ही असंतुलित हुई तो उसका असर समाज के हर हिस्से पर पड़ेगा। अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पर टिकी हैं, जहां यह तय होगा कि क्या इस कानून पर रोक लगेगी या फिर इसमें आवश्यक संशोधन होंगे। भारत न्यूज 360 टीवी इस मुद्दे से जुड़ी हर कानूनी और संवैधानिक अपडेट अब तक सबसे पहले पहुंचाता रहेगा, क्योंकि सवाल सिर्फ एक कानून का नहीं बल्कि देश के युवाओं और आने वाले कल का है। अभी के लिए इजाजत दीजिए, लेकिन जल्द मिलेंगे आपसे एक ऐसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए भारत न्यूज 360 टीवी, सच का सफर हर दिल तक।